नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा सिंह और ये है 46th प्रैक्टिस टेस्ट टू क्रैक द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड साइंटिस्ट बी एग्जाम। दिस प्रैक्टिस टेस्ट हैज 10 questions related to soil chemistry, and this practice test is also useful for senior scientific assistant aspirants. So let's begin. But before that, please do like this video, and if you like it, share it with at least 3 friends or WhatsApp groups as Guru Dakshina. Question number 1. Match the following: A horizon, O horizon, C horizon, and B horizon of soil. And here is subsoil, leaf litter, parent material, and topsoil. We all know that O horizon comprises leaf litter. जो O horizon होता है वो सबसे ऊपर वाला लेयर होता है सॉइल का, और उसमें लीफ लिटर होता है, सूखे पत्ते होते हैं। तो B को हम 2 से मैच करेंगे। तो देखते हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन को 2 से मैच किया है। B, तो यहाँ पर B है और उसको 2 से मैच किया है ऑप्शन A में। सो A इज 4. A horizon is topsoil, then B is 2. O horizon is leaf litter, we all know. Then C is 3. C horizon is parent material, we all know. And B horizon of soil, D is 1, is subsoil, we all know. तो सॉइल की लेयर्स होती है, सबसे पहले O horizon जिसमें कि लीफ लिटर होता है, उसके बाद टॉप सॉइल, उसके बाद सब सॉइल, और उसके बाद पेरेंट मटेरियल। O horizon जो होता है वो लीफ लिटर होता है, टॉप सॉइल A horizon, B horizon होता है सब सॉइल, एंड C horizon होता है पेरेंट मटेरियल या बेड रॉक। ओके, क्लियर? सो आंसर इज A. Let's look at question number 2. Match the following words in list 1 with their meaning in soil science in list 2. तो list 2 में मीनिंग है और list 1 में वर्ड्स है। टेक्सचर, टेक्सचर का मीनिंग क्या होता है? वर्टिकल जोनेशन, लैंड डिग्रेडेशन, planting trees या mineral particle size. We all know texture relates to particle size. Okay, so A has to be matched with 4. So A has to be matched with 4 here. This is the option. A is matched with 4. B, soil profile is matched with 1, that is vertical zonation. C, erosion. C का 2, C is matched with 2. लैंड डिग्रेडेशन, जब इरोजन होता है तो लैंड डिग्रेडेशन तो होता ही है। और D, कंजर्वेशन, संरक्षण, संरक्षण को मैच किया है D को 3 से, प्लांटिंग ट्रीज। तो जब हम ट्रीज प्लांट करते हैं तो सॉइल कंजर्वेशन करते हैं, तो सही उत्तर होगा A। ठीक है, आराम से इसको याद कर लीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। Which of the following bacteria converts nitrite to nitrate? अब यहां पर देखने वाली बात यह है कि जो नाइट्रोजोमोनास होता है वो अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है, और फिर ये नाइट्राइट नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है। तो नाइट्रेट में कैसे कन्वर्ट होता है? बाय नाइट्रोबैक्टर, क्योंकि राइजोबियम जो है वो रूट, वो लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट नोड्यूल्स में होता है, और राइजोबियम जो है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में फिक्स करता है, और फिर वो अमोनिया अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट होता है। और एजोस्पिरिलम जो है वो प्लांट के रूट जोन में पाया जाने वाला एक बैक्टीरिया होता है जो कि प्लांट हार्मोन सीक्रेट करता है और उससे रूट्स बेटर ग्रो करते हैं, पर नाइट्रोजन फिक्सिंग में उसका कोई डायरेक्ट रोल नहीं होता है। So nitrosomonas is the bacteria that converts ammonia to nitrite, and this nitrite is then converted to nitrate with the help of nitrobacter. Rhizobium does fix atmospheric nitrogen in the plant root nodules, but rhizobium does it by converting atmospheric N2 gas into ammonia and finally into amino acids. And azospirillum does not play a direct role in nitrogen fixation, but it excretes plant hormones and lives in the plant root zone. So the correct answer is B. ठीक है, बी सही उत्तर है। नाइट्रोबैक्टर फिक्सेस कन्वर्ट्स नाइट्राइट टू नाइट्रेट, एंड इसको भी अच्छे से समझ लीजिएगा, और कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में बताइए। क्वेश्चन नंबर 4. विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स हेल्प्स इन फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एनारोबिकली? नाइट्रेट रिडक्टेज, नाइट्राइट रिडक्टेज, transaminase या nitrogenase? Correct answer is D, nitrogenase, because nitrate reductase reduces nitrate into nitrite, and nitrite reductase reduces nitrite into ammonia, and transaminase is also called aminotransferase, and it converts amino acids into carbonyl groups. So nitrogenase is the enzyme that helps in fixing atmospheric nitrogen anaerobically, okay, in the absence of air. Question number 5. Which of the following free living organisms helps in nitrogen fixation? अब नाइट्रोजन फिक्सेशन से काफी सारे सवाल हैं कि फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि जो राइजोबियम है वो फ्री लिविंग नहीं है, इट ऑलवेज लिव्स इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ प्लांट्स। तो प्लांट्स, लेग्यूमिनस प्लांट जो होता है, जो दलहन होती है, उसके रूट नोड्यूल्स में, रूट की जड़ की गांठों में राइजोबियम पाया जाता है, वो फ्री लिविंग नहीं है। तो फ्री लिविंग कौन सा है? राइजोबियम तो नहीं है, फिर अजोटोबैक्टर, फ्रैंकिया या डोरी लाइम्स? सही उत्तर है बी, अजोटोबैक्टर।
ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। अजोटोबैक्टर इज अ फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। Which of the following metalloids is a common source of groundwater pollution due to mineral dissolution in the Gangetic plains of Bihar and West Bengal? इनमें से कौन सा मेटलॉइड है, मतलब ना वो मेटल है ना वो नॉन मेटल है, बीच का है मेटलॉइड, जो कि गैंजेटिक प्लेन्स में पाया जाता है, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर पोल्यूशन अक्सर होता है वहां पे? आर्सेनिक, बोरन, कैडमियम या मर्करी। सो कैडमियम एंड मर्करी आर नॉट मेटलॉइड्स, ये मेटल्स हैं कैडमियम और मर्करी। बोरन एक मेटलॉइड है लेकिन ये ग्राउंड वाटर पोल्यूशन में मेजर रोल प्ले नहीं करता है। आर्सेनिक एक मेटलॉइड है जो कि गैंजेटिक प्लेन्स में पाया जाता है, पर क्योंकि गैंजेटिक प्लेन्स में आर्सेनिक फिक्सिंग बैक्टीरिया नहीं होते हैं, तो इस वजह से जो आर्सेनिक है वो मिनरल है और वो डिजोल्व कर जाता है पानी में, ग्राउंड वाटर में, क्योंकि वो जमीन में मिट्टी में फिक्स नहीं हो पाता है और पानी में डिजोल्व हो जाता है, और उसकी वजह से गैंजेटिक प्लेन्स में बिहार और वेस्ट बंगाल में आर्सेनिक कंटेमिनेशन होता है। करेक्ट आंसर इज ए। Arsenic is a metalloid that causes groundwater pollution due to mineral dissolution in the Gangetic plains of Bihar and West Bengal, because in these plains, in the Gangetic plains, there is a lack of arsenic fixing bacteria in the soil, and since there is no bacteria, arsenic is not fixed or bound to the soil, but it dissolves in the water and causes groundwater pollution. Okay. Question number 7. All of the following are agents of soil erosion except, ये सभी सॉइल इरोजन के एजेंट्स हैं, सभी सॉइल इरोजन को करते हैं एक्सेप्ट विंड। विंड तो सॉइल इरोजन करता है, ये रनिंग वाटर, चलता हुआ पानी, उससे भी सॉइल इरोजन होता है, और रेनफॉल से भी सॉइल इरोजन होता है। सॉलिड वेस्ट, दिस इज द ओनली ऑप्शन दैट इज इनकरेक्ट। सॉलिड वेस्ट से कोई सॉइल इरोजन नहीं होता है। आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 8. विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स इज कंसिडर्ड बेस्ट फॉर एग्रीकल्चर? इनमें से किस प्रकार की मिट्टी एग्रीकल्चर के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है? लोमी सॉइल, क्ले, सैंडी सॉइल या पीट? तो क्ले जो है वो एग्रीकल्चर के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है, क्योंकि ये बहुत ही कंपैक्ट और स्मूथ होती है और जड़ों की ग्रोथ के लिए क्ले अच्छा नहीं होता है। सैंडी सॉइल में कुछ प्लांट्स बहुत अच्छे थ्राइव करते हैं, लेकिन इसमें अक्सर ह्यूमस की कमी होती है, इसलिए ये भी प्लांट्स के लिए बेस्ट नहीं है। और पीट जो सॉइल है उसमें हद से ज्यादा ह्यूमस और बहुत ज्यादा मॉइस्चर होता है, तो गीला गीला मिट्टी होता है, तो इस वजह से वो हर प्लांट के लिए सूटेबल नहीं है। पर लोमी सॉइल में परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ क्ले, सैंड और ह्यूमस होता है, और इसलिए लोमी सॉइल इज कंसिडर्ड द बेस्ट फॉर एग्रीकल्चर। ओके, we all know this, but just as a repetition I put this question so you know. And if you have doubt or confusion or contradiction, again let me know in the comments below. I really appreciate your comments. Question number 9. Choose the incorrect statement. कौन सा इनमें से statement सही नहीं है? Deforestation leads to soil erosion, सही है। Rainfall causes sheet erosion and gully erosion, true, ये भी सही है। Landslide is a form of erosion, तो भूस्खलन जो होता है ये भी इरोजन का एक सॉइल इरोजन का एक प्रकार है, सही है। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन कॉजेस सॉइल इरोजन, ये सही नहीं है। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन माइट कॉज सॉइल डिग्रेडेशन, बट इट डज नॉट कॉज soil erosion. Erosion is the carrying away of topsoil from one place to another, and that is not caused by industrial pollution. Industrial pollution just causes the degradation of soil. The soil is there itself, but it degrades. तो इरोजन क्या होता है कि जो मिट्टी है वो एक जगह से हट के दूसरी जगह चली जाती है, पर इंडस्ट्रियल पोल्यूशन से अगर केमिकल्स डिस्चार्ज हो भी जाता है तो मिट्टी कहीं एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाती है हटके, मिट्टी वहीं रहती है, पर वो मिट्टी पोल्यूट हो जाती है, डिग्रेड हो जाती है। तो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन इज वन दैट डज नॉट कॉज सॉइल इरोजन। तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन कॉजेस सॉइल इरोजन इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट। दिस इज डी इज द आंसर। ओके, आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 10. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिलेशन टू सॉइल कॉम्पोजिशन? अब सॉइल कॉम्पोजिशन के हिसाब से कौन सा सही है? अनअमेंडेड सॉइल, अनअमेंडेड मींस नेचुरल अनचेंज, जिसमें कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं हुआ है। तो अनअमेंडेड सॉइल कंटेन्स 40 to 45% इनऑर्गेनिक मैटर, 5% ऑर्गेनिक मैटर, 25% water and air. B. All soil contains 40 to 45% inorganic matter, 5% organic matter, 25% water and 25% air. हर तरह की सॉइल का केमिकल कॉम्पोजिशन एक ही होता है, 40 से 45% इनऑर्गेनिक मैटर होता है, 5% ऑर्गेनिक मैटर होता है, 25% पानी होता है और 25% हवा होती है। तो ये सही नहीं है। सही इसलिए नहीं है क्योंकि अलग अलग मिट्टी का जो केमिकल कॉम्पोजिशन है और फिजिकल है रूप है वो डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। Unamended soil contains 40 to 45% organic matter, 5% inorganic matter, 25% water and 25% air. तो मतलब जो अनअमेंडेड नेचुरली फॉर्म्ड सॉइल है जिसको कोई चेंज, अनअमेंडेड मतलब कोई बदलाव नहीं किया गया है आदमियों के द्वारा, तो उसमें 40 से 45% तक ऑर्गेनिक मैटर है, 5% इनऑर्गेनिक मैटर है और 25% पानी और 25% हवा है या नहीं? तो ये भी सही नहीं है क्योंकि अनअमेंडेड सॉइल में
जरूरी नहीं, अनअमेंडेड सॉइल में कुछ भी हो सकता है क्योंकि आपने उसको बदला है। डी नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज ए, अनअमेंडेड सॉइल या अनचेंज्ड सॉइल या नेचुरल सॉइल कंटेन्स 40 to 45% इनऑर्गेनिक मैटर, 5% ऑर्गेनिक मैटर, 25% वाटर एंड 25% एयर। दैट्स इट। आशा है आज जो हमने डिस्कस किया आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है, कंफ्यूजन है या कोई आपको मतभेद है, हर हाल में लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो एंड आई ऑलवेज आंसर ऑल योर कमेंट्स। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम एंड चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर मोर प्रैक्टिस टेस्ट। जय हिंद, जय भारत।